Sagar, Bhakti, Jyoti, can you all hear my voice? Yes, sir. Check. So let's start with the today's discussion. As I've already told you that today I'm going to discuss with you the strategy for upcoming prelims exam. So as you all know that UPSC prelims exam is all about knowing the basics of all around 7 to 8 subjects in the syllabus. So as we all know that in the syllabus we have Indian economy, we have Indian polity, we have Indian geography, and we are having Indian history. And apart from that, we are having science and technology and international relations. So these are the major topics on which UPSC do ask the question. So normally, what happened that UPSC do ask the around 10 to 15 question on each of these topics. Last year, on the basic topics like Indian polity, Indian history, Indian geography, and Indian economy, UPSC has asked 10 questions on all these basic topics, and remaining 50 questions or around 40 questions, UPSC has asked from the environment and science, technology, and current affairs, and जनरल अवेयरनेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इन द लास्ट ईयर. So last time I have given you the list of the topics on which UPSC asked the question in polity. Today I will be giving you the list of the topics on which UPSC do ask the question in economy. So this list of the topics which I have made, this is based on the previous year question paper analysis, that by analyzing and observing the previous around 7 to 8 year question paper, I have come across this list of the topics on which UPSC do ask the question every year. So around there are around 12 to 13 subjects, or there are around 12 to 13 topics on which UPSC do ask the question in prelims exam in economic, Indian economic education, right? So as all of you have attended my basics of Indian economic class, you must be aware about all these topics. To just have a focus and to just uh, कि इस आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में हमें थोड़ा सा फोकसली प्रिसाइजली अगर प्रिपरेशन करना है, कम समय में अगर हमें रिवीजन करना है, तो वी विल जस्ट ट्राई टू नो दैट ऑन व्हिच टॉपिक यूपीएससी टू आस्क द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जाम. So normally the question in the prelims exam is based on the types of economy and Indian economy. Types of economy matlab the types of economy like mixed economy, social economy, capitalist economy, then developing economy, underdeveloped economy, developed economy. These are the various types of economy like socialist economy. And then which economies are called as socialistic economy, which economies are called as capitalist economy, which economies are called as developed economy, which economies are called as underdeveloping, north economy, south economy. So basic चीजों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, right? There is something called mixed economy. Anyone knows what is the meaning of mixed economy? Sagar, what is mixed economy? Yes, sir. The mixed economy refers to the economy which government and private sector both engage into the production and distribution of the goods and services. And India is an example of mixed economy. Yes, sir. Yes, sir. It is an example. Right. So ये concept अगर आपको पता है, UPSC may not directly ask you question what is mixed economy or what is socialist economy or what is capitalist economy or what is underdeveloped economy or developing economy or developed economy. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, बट आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर है कि ये क्या होते हैं, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होते हैं, सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, या कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो जो क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका आंसर निकालने के लिए आपको आसान हो जाता है. सो एज ऑलवेज से finding out the answer in prelims exam is an art. It is it is a kind of play or it is a kind of game. तो इसको जितना भी इंफॉर्मेशन या जितना भी कंसेप्ट या जितना भी बेसिक मालूमात या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में है, conceptual clarity plus basic information, whatever information you have with respect to that particular topic, based on that you have to find out the answer, you have to derive the answer. एग्जाम में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर, देयर विल बी वेरी फ्यू क्वेश्चन
where you can find out the direct action. Like there will be around 25 to around 30 questions only, where there will be very straightforward question and straightforward answer. But majority of the question, like more than 70 to 75 question in the prelims exam, you have to derive the answer, you have to find out the answer based on whatever you know with respect to that particular concept. Like आपको ये types of economy के बारे में जो कुछ भी आपको पता है, उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होता है. So types of economy समझ में आ गया पहला टॉपिक, अंडरस्टूड. भक्ति ओमकार, दैट ये पहले वाले टॉपिक में आपको कौन से कंसेप्ट्स को क्लियर करना है? सागर, इज इट क्लियर? I will be discussing few question as well, like 2023 questions as well as 2022 question, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसके बेसिस पे आप आंसर कैसे निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी. बेसिकली आपको ये इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू नो द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Like what are the features of Indian economy, what are the challenges of the Indian economy, what are structural problem of the economy, like India के इकोनॉमी के स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया के इकोनॉमी के वीकनेसेस क्या है, ये आपको समझना जरूरी है. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्शियरी में कितने हैं, टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का क्या, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है. अगर 1991 के बाद की इकोनॉमी इंडिया की कैसी है और 1991 से पहले की इकोनॉमी क्या है. आई होप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल आर राइटिंग इट डाउन. ये आपको मुझे लगता है भक्ति, ओमकार, ज्योति एंड सागर, यू प्लीज नोट इट डाउन. अगर आपको नोट नहीं करना है तो कम से कम ध्यान में तो रखना कि करना क्या है. मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या करना है मैंने आपको बताया था. इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लाइक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. मतलब इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की इकोनॉमी के वीकनेसेस क्या है, प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्शियरी में कितने हैं, 1991 के पहले की इकोनॉमी, बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991. सो ये पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इसके अगर आपको आंसर देखिए एग्जाम में एक या दो सवाल इस टॉपिक पे बेस्ड आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Am I audible, Sagar? Yes, sir. Sorry. So this topic, that is types of economy and Indian economy, you have to read it from 11th standard Indian economic development. तो उसमें आपको क्या समझना है उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी को, उसको एक बार पढ़ना है आप. अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो हार्डली इट विल टेक 3 to 4 days for you to read the that NCERT, 11th standard NCERT, that is Indian economic development. तो उस एनसीईआरटी को किस नजरिए से पढ़ना है आपको, इंडिया के इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय में व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ वी हैव ओवरकम दोस द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट हैज हैपेंड इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बिफोर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. मतलब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी और उसके बाद में इंडिया की इकोनॉमी क्या थी और कौन से
प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और कौन से प्रॉब्लम अभी फिलहाल स्टिल दे आर प्रिवेलेंट इन इंडियन इकोनॉमी, दैट्स व्हाट। गॉट इट सागर? तो इस टॉपिक पे Yes, sir. पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन 2021 एक क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द लिबरलाइजेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? ज्योति, आपको Sir, ये it is क्वेश्चन wrong, समझ में आ sir. गया? स्टेटमेंट ये था कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सहभाग है, वो बढ़ गया था या घट गया था, ये पूछा। सो स्टेटमेंट वाज दैट the contribution of agriculture in Indian GDP after 1991 economic liberalization has increased. So the statement is correct or wrong? क्या लगता है आपको ज्योति? Do you know about correct. do you know about 1991 economic reforms? 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, इसके बारे में कुछ आइडिया है? No, sir. No idea. Okay, Sagar, recently this 1991 economic reforms was in the news. Do you know why it was in the news? Recently, just last week में 1991 economic reforms के बारे में न्यूज़पेपर में आया था कुछ। ओमकार, भक्ति, सागर, ज्योति, आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कुछ आया था? जस्ट लास्ट वीक ही आया था। से याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो इट वाज व्हेन पीवी नरसिम्हा राव हैज बीन गिवन द भारत रत्न अवार्ड। जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो उस समय में 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया था। एक्चुअली मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर when economic reforms took place in India in 1991, but it was during PV Narasimha Raw's prime ministership that economic reforms in India started in 1990. Do you remember that, Sagar? Yes, sir. Yes, sir. मुझे Anyways, इस कंटेक्ट में आया था। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जब आया था, तो अभी आपको क्या करना है कि 1991 के बाद में इंडिया की इकोनॉमी में क्या हुआ, उसके बाद में क्या नहीं हुआ, ये आपको समझना जरूरी है। ज्योति, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में एग्रीकल्चर का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में, वो घट गया है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो डिक्रीज हो गया है। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना जरूरी है, और ये आपका हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एनसीईआरटी पढ़ने से। आपको ये विदाउट फेल वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है और उसको समझ कर पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज्योति, तो आप मुझे मैसेज करें। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, like next important topic on which continuously UPSC is asking the question on the topics like various economic measurements, like GDP में भी again types of GDP, especially what is GDP, types of GDP, various methodology of GDP, various types of GDP like real GDP, nominal GDP, GDP deflator, GDP to tax ratio. Do you remember GDP to tax ratio was in the news? उसके अलावा GDP to debt ratio. सागर, प्लीज नोट इट डाउन। ये आपको देखना है कि what is GDP to tax ratio, what is GDP to debt ratio, whether this GDP to tax ratio is increasing or the GDP to debt ratio is increasing or decreasing in the last 5 years, in the last 10 years. That's what you need to know. So concept related to the GDP, calculation of GDP, methodology of GDP, you can say the types of GDP, real GDP, nominal GDP, then base effect, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जीडीपी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम। तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको देखना है, एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, वेदर द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर कैपिटा ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होता है, purchasing power parity क्या होता है। Question has been asked in the last 2 to 3 years. What is PPP? Purchasing power parity, etc.
सो लाइकवाइज ऐसे कुछ अराउंड 7 to 8 वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मेजरमेंट है, और इस इकोनॉमिक मेजरमेंट पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर? Got it? Omkar, Bhakti, Sagar. So second topic on which the Yes, sir. questions are. Now third important topic on which questions are asked is related to inflation. तो inflation में क्या है? What is inflation? What are the causes of inflation? What is demand pull inflation? What is cost push inflation? What are the indicator of the inflation, like various indexes like CPI, WPI, core inflation, then food inflation, then types of inflation like skewflation, then stagflation, then K-shaped recovery, V-shaped recovery. इस इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी सारे बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, इसका एक ट्रेंड भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे गिव टू स्टेटमेंट्स, लाइक जैसे कि एक स्टेटमेंट में कहा जाएगा लाइक परचेसिंग पावर पैरिटी इज डैश डैश डैश, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी इसे हम कहते हैं. सेकंड स्टेटमेंट होता है पिछले कुछ दिनों में इंडिया का रैंकिंग परचेसिंग पावर पैरिटी में बढ़ गया या घट गया, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट दिया जाता है. सिमिलरली इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस दिस दिस. सेकंड आता पिछले कुछ सालों से इंडिया के इकोनॉमी पे बेस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है या बेस इफेक्ट घटता जा रहा है, ऐसे सेकंड स्टेटमेंट पूछते हैं. तो ये सेकंड स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली, मतलब पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, परचेसिंग पावर पैरिटी इंडिया का बढ़ रहा है घट रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन, जैसे कि 2 दिन पहले न्यूज आई थी, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, ये पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है या घट रहा है, ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है. पहले स्टेटमेंट में वो है क्या चीज ये एक्सप्लेन किया जाता है, एंड सेकंड स्टेटमेंट में बढ़ रहा है या घट रहा है ये पूछा जाता है. तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, सागर? Sir, economic survey. Yes, economic survey of India. Now our exam is scheduled on 25th of May. उससे पहले इंडिया का I don't think कि budget will be presented in the parliament, because elections are scheduled to be held in the month of April and May. तो बिफोर अवर प्रीलिम्स एग्जाम अगर बजट इंडिया में आता है, इस साल का बजट, तो आप इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, बिकॉज बजट से जस्ट इमीडिएटली 1 डे बिफोर द बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश. बट इस बार इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? एनी आइडिया? यस सागर, व्हाई द इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट पब्लिश्ड दिस ईयर? Because सर फुल बजट नहीं है सर, इंटरिम बजट है, इसी कारण नहीं आया. तो अभी इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो होगा, मुझे नहीं लगता है कि इस साल इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होगा. तो यू हैव टू रेफर लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, राइट इट डाउन. इसके लिए यूज करना है. भक्ति, आर यू गोइंग टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे? पूरा देखोगे क्या? यस. सो व्हाट यू विल सी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में यू विल जस्ट चेक द ग्राफ्स एंड उसमें जो ग्राफ्स होते हैं ना, उसमें जो ट्रेंड लिखा हुआ रहता है वही आप देखिए, और उसमें आप ट्रेंड देखेंगे. ट्रेंड ऑफ जीडीपी, ट्रेंड ऑफ जीएनपी, ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा इनकम, ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सेट्रा. तो सोर्स इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, राइट इट डाउन. तीनों के लिए इकोनॉमिक मेजर एंड इन्फ्लेशन यहाँ आप देखेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से पिछले 10 साल का, 5 साल का ट्रेंड देखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फ्लक्चुएटिंग. समझ में आएगा क्या वो फ्लक्चुएट कर रहा है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो अभी आपको पूछना है ओमकार, भक्ति, ज्योति, सागर. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट and very important topic on which at least 2 or 3 questions are asked in prelims exam, that is banking system in India.
what are banks, what are the types of banks, what are the various the systems introduced in banking system, जैसे कि payment bank, small finance bank, या फिर ATM, new technology in ATM, UPI system और RTGS या NEFT। रिसेंटली जो बैंकिंग सिस्टम में जो नए नए टर्म जैसे जनधन अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट, ऐसे जो नए नए टर्म्स जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो आ रहे हैं, जो ज्यादा न्यूज में है या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसे आपको देखना है। जैसे कि लास्ट ईयर डिजिटल करेंसी पे क्वेश्चन पूछा गया। Do you remember that question, Sagar? And you have solved also that question. Do you remember that question which was asked in 2023? यस सर, CBDC के ऊपर पूछा था, सेंट्रल Yes, बैंक डिजिटल central करेंसी। bank, yes, central bank digital currency, CBDT पे पूछा गया था। उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे। तो ये पिछले साल भर में या पिछले साल 1.5 साल में बैंकिंग सिस्टम में कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है क्या, उस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। यू डोंट नीड टू यस ऑफ कोर्स, पहले शुरुआत में समझने के लिए कि क्या होता है बैंकिंग सिस्टम, क्या होता है क्या नहीं होता है, शुरुआत में समझने के लिए बेसिक आपको पढ़ना है। लेकिन उसके बाद में अगर बैंकिंग सिस्टम में कुछ नया आ रहा है, कुछ नया पेमेंट सिस्टम आ रहा है या कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर डेबिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नया कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, पेटीएम बैंक शुरू किया है या NBFC सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू किया, नया टाइप ऑफ बैंक अगर उन्होंने शुरू किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बैंकिंग सिस्टम। गॉट इट? सो बैंकिंग सिस्टम and recent development in banking system, new terms जो बैंकिंग सिस्टम से, जैसे कि अगर कोई बैंकिंग सिस्टम्स में NPA ज्यादा न्यूज में है या पार्टिसिपेटरी नोट्स ज्यादा न्यूज में है या हम क्या कहते हैं, देयर इज बैंक, एक नई बैंक, बैड बैंक या लॉस्ट अकाउंट या हम क्या कहते हैं कि बैड अकाउंट, ऐसे अगर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ नए नए टर्म्स अगर न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो वो आपको देखना है, उसका मीनिंग क्या हो देखना। पिछले 2-3 महीनों से लगातार हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस समय में ऐसा कोई अगर टर्म आता है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आई आस्क यू टू नोट इट डाउन एंड चेक इट आउट व्हाट इज इट्स मीनिंग और व्हाट ये क्यों न्यूज में है, देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर वो समय समय में अगर उसी समय में अगर आप न्यूज़पेपर में जो टर्म आते हैं बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उसी समय में आपने देखा होता, तो दिस कुड हैव बीन वेरी इजी, दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? रिसेंटली पेटीएम बैंक में के वक्त में, पेटीएम बैंक जब क्लोज हो रहा था, तो उस समय में 4-5 टर्म बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में आ रहे थे, और उस समय में मैंने आपको बताया था कि आपको नोट डाउन करके रखना और ये देखना है। क्लियर? सो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ में आ गया? सागर, ज्योति, भक्ति, इज इट क्लियर? न्यू सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू वी कैन से प्रोविजंस, अगर बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कुछ नया हो रहा है, नए डिजिटल यूपीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, भीम का क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर CBDT पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस सर ऐसा क्या हुआ है नया बैंकिंग सिस्टम में, उसको आपको उस चीज को आपको देखना है। और अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो आपको ये आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? Now next topic is called monetary policy. Reserve Bank of India acts as a central bank in India. So you need to know what is Reserve Bank of India's role as a central bank and what is monetary policy committee. What are the various provisions with respect to monetary policy committee? इसको देखना, और monetary policy से related अगर कुछ नया term न्यूज़पेपर में continuously आ रहा है, तो आपको देखना है। There are various types of terms like repo rate, reverse repo rate, open market operations, closed market operations, या नई नई चीजें लाइक न्यू टर्म्स लाइक यू कैन से लॉन्ग टर्म रेपो सिस्टम, या फिर और एक होता है LTR। देयर आर सो मेनी सच थिंग्स व्हिच गिव्स लाइक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे नए नए टर्म्स न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी RBI ने डिसाइड किया था, जहां पर उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया था, दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस इनटू मॉनेटरी पॉलिसी। तो उस समय में 4-5 टर्म न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली आए थे, तो वो टर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। क्लियर? सो देयर इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन
ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एवरी ईयर। इज इट क्लियर टू यू? मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया कौन से टॉपिक पे आते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो टर्म्स है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? पॉलिसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम, राइट? तो इसका मतलब बेसिक, जैसे गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, लाइक टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकमिंग मनी, आउटगोइंग मनी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, देन डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स है, फिस्कल एक्सपांशन, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी सारे, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं। तो ये इस पर एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम ऑन फिस्कल पॉलिसी, वन क्वेश्चन ऑन फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? सोर्सेस के लिए क्या रहेगा? क्लास नोट्स अपने रहेंगे और न्यूज़पेपर में फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे कंटिन्यूसली, वो आपको नोट डाउन करना है और उसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझना है। इन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज पे ऐसा अगर कोई टर्म आता है तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, वो आपको करना है। तो सोर्सेस फॉर फिस्कल पॉलिसी, क्लास नोट्स प्लस न्यूज़पेपर। सोर्सेस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, क्लास नोट्स फॉर न्यूज़पेपर। सोर्स फॉर बैंकिंग सिस्टम, our class notes plus newspaper. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now next is taxation system, various types of taxes like GST, direct tax, indirect tax. टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई नया कुछ हो रहा है इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में, कुछ नए नए टैक्स अगर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो टैक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, लाइक वेदर इंडिया इज अभी प्रोग्रेसिव टैक्स और रेग्रेसिव टैक्स, या टैक्सेशन में भी अगर कोई इस तरीके का टैक्स जैसे कि एंजल टैक्स है या प्रोफेशनल टैक्स है या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर कोई टैक्स है, ऐसा अगर कोई नया टैक्स अगर ज्यादा न्यूज में है तो वो आपको देखना है कि उससे रिलेटेड कुछ नया अगर आ रहा है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बेसिक आपको कहां से करना है? टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, व्हाट आर टैक्सेस, व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट आर टैक्स रिफॉर्म्स। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या टैक्स रिफॉर्म किया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या रिफॉर्म किया गया है, ये आपको देखना जरूरी है। डायरेक्ट टैक्सेस कोड, GST Council, Goods and Service Tax, which taxes are in GST, which taxes are not in GST, which taxes are called as direct taxes, which taxes are called as indirect taxes। ये सारी चीजें आपको देखना है। अगर गवर्नमेंट कोई नया टाइप का अगर कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट बजट में, वो देखना है। अब इंटरिम बजट में तो कोई नया टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन अगर पिछले साल के बजट में कोई ऐसा नया टैक्स अगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो टैक्स क्या है और वो किस पर्पज से इंट्रोड्यूस किया गया, वो आपको देखना जरूरी है इन दिस 7th टॉपिक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ईयर इज फाइनेंशियल मार्केट। पिछले 3-4 साल से लगातार एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, सेबी, देन सेंसेक्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है जो ज्यादा न्यूज में है, right? So you have to study the basics of financial market, like what are IPOs, what are FPOs, what is primary market, what is secondary market, ये आपको बेसिक देखना है। और उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अगर कोई टर्म न्यूज में था पिछले 2-3 दिनों से लगातार या पिछले 1-2 साल से, तो वो आपको देखना है। द सोर्स फॉर करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर, एंड सोर्स फॉर बेसिक इज माय क्लास नोट्स, या आप गूगल में भी सर्च करके फाइनेंशियल मार्केट के बारे में यूट्यूब चैनल पे वगैरह अगर कोई अच्छा यूट्यूब वीडियो है इससे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। क्लियर? आर यू नोटिंग इट डाउन द सोर्सेस एज वेल? ओमकार, भक्ति, सागर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एनी आइडिया व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? भक्ति, डू यू रिमेंबर व्हाट इज बीओपी, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? नो आइडिया? ये याद नहीं आ रहा है?
याद नहीं आ Yes. रहा है सर। ठीक है सागर, यू नीड रिवीजन भक्ति, यू नो ऑल दिस थिंग्स, बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करने की जरूरत है एंड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यस सर। डू यू रिमेंबर Pranali? I think from your reference only she has joined my class last year. Pranali Lokre ओळखते का तू भक्ती? हो सर, हो। She has appeared last time and she has got good marks in previous year prelims exam in GS paper. She did not qualify CSAT, but in GS paper she has got around 85 to 90 marks, and that was only because she has attended my classes last year. तो आपको भी सब कुछ आता है, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, so just revise whatever the topics we have studied. Yes Sagar, what is balance of payment? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो जिस ये कंट्री का जो अगर दूसरे कंट्री के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है सर गवर्नमेंट द्वारा। Like, so what are the various the accounts in balance of payment? देयर आर 3 अकाउंट्स सर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व। यस, तो करंट अकाउंट में कुछ चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में भी कुछ चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब रखा जाता है, और इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो बचा हुआ रहता है वो रिजर्व अकाउंट में रखा जाता है। So there are these 3 types of account: current account, capital account, and reserve account. So as a UPSC aspirant, you need to know which things are included in current account, which things are included in capital account, and which things are included in reserve account. और उसके अलावा आपको क्या पता होना जरूरी है कि करंट अकाउंट में क्या इंडिया सरप्लस है या डेफिसिट है, मतलब वी इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज और वी एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो कौन सी चीजें ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अगर कौन सी चीजें अगर इंपोर्ट करते हैं तो कौन से करते हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल करते हैं या सीमेंट करते हैं या क्रूड ऑयल करते हैं, या सर्विसेज में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। Then in capital account also there are 2 types, that is what is FDI, what is FII, what is foreign portfolio investment, what is a foreign direct investment, whether India receives more money from FDI or more money from FPI, etc. All these things you need to know. Okay, only 1 minute is left, this session will be ended. If the session is ended, you need to join again by using the same link. We will be discussing the remaining topics that on which the UPSC asks the question. Okay, join again by using the same link.